Everyone, now we'll start our second question of depreciation. First we have completed in our previous class. So see here the question. Second, Ganesh bought a machine for 17,000 and paid for installation 3,000. So on how much amount Ganesh bought the machine? 17,000, right? And installation charges were how much? Installation charges were how much here? 3,000. Installation charges were 3,000. So here the cost of machine will be 17 plus 3, 20,000, that is. When it is bought on 30th September. Months calculation I have already shown you in our previous classes how to calculate the months. 30th September is nothing but 1st October. As I told you, 30th September is nothing but 1st October. We need to calculate the depreciation from 1st October for our first year. Understood? Next, the rate of depreciation is how much here? The rate of depreciation is 20%. Under which method? Straight line method or fixed installment method? Both are same, straight line method and fixed installment, and it is also called as original cost method. Prepare machine account up to 31st March 2014. Here see, 31st March means what it is? It is our financial year. Up to 2014 starts from means 11 12 12 13 13 14, 3 years depreciation we need to calculate here, right? So first, cost of machine. Cost of machine is how much? Cost equals to here how much? 17,000 plus 3,000, that is 20,000. We purchase the machine for 17,000 and the installation charges should also be added. As I explained you in earlier classes, we need to add the installation charges with our cost of machine. So the total cost of machine is how much here? 20,000. Next, months for first year depreciation. See here, for the first year depreciation, the months will be months calculation. See here, for 2011 we have September, sorry, do not have a September because September, not October. Why? Because 30th September, no? October, November, December, and for 2012 January, February, March, right? So 2011's 3 month and plus 2012's 3 month, दोनों के अपने को यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 मंथ्स के लिए. कितना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स डिप्रिसिएशन वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट ईयर. अगर एसेट परचेज होता था 1 अप्रैल 2014 तो फुल ईयर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, लेकिन एसेट कब परचेज हुआ? 30th सितंबर मीन्स अक्टूबर से पकड़ेंगे क्योंकि सितंबर का मंथ तो कंप्लीट हो गया. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फॉर 2011 और मार्च को एंड हो रहा है ना, तो 2012 का अपने को रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च. तो फर्स्ट ईयर में हम डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च. मीन्स फॉर द फर्स्ट ईयर वी नीड टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन फॉर 6 months only, but from the second year we will calculate the depreciation for whole year. So when asset purchased 30th September 2011, that is to bank account, amount, how much amount we have? See here, amount that is 20,000, right? 20,000 amount we have for it, right? Amount 20,000. Next, 30th September 2011 to bank account 20,000, that is 17 plus 3 installation also we added here. Next, depreciation will be calculated
ऑन 31st मार्च एवरी ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। 31st मार्च को कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर अकाउंट अप टू 31st मार्च 2014 दिया है यहाँ पे, उसको करेंगे अपन। कब का डेट है? डेट रहेगा 31st मार्च 2012। ओके, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग नाउ। डिप्रिसिएशन कितना है? 20,000 को कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन किस पे? 20,000 पे, 20,000 पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कितना? फॉर हाउ मच? 20% फॉर 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ्स ही आए ना फर्स्ट ईयर के। 10 10 10 10 कैंसल, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है ना। फिर आप फिर ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 1 जा, टोटल कैंसिल हो गया। 2000 अपने को बचा है डिप्रिसिएशन, राइट। वो हम लिखेंगे। अमाउंट कितना है यहाँ पे? अपने को डिप्रिसिएशन आया था कितना? 2000। तो डिप्रिसिएशन आया है 2000। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे। फिर अभी बैलेंसिंग फिगर देखना है। बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन, सेम डेट पे होगा। वी कैन कीप इट एज डू सिंबल। डेट सेम रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको सेम डेट होगा, ठीक है ना। वही डेट डालना है। 31st मार्च 2012 वाला ही डेट डालना है आपको, राइट। सेम डेट। कितना बैलेंस? बैलेंसिंग फिगर देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी क्लोजिंग लाइन, यहाँ पे भी आपका क्लोजिंग लाइन, राइट। अमाउंट रहेगा सेम आपका 20,000 दोनों के एंड के लिए। यहाँ पे भी 20,000। बैलेंसिंग करना है, लेडजर बैलेंसिंग। सेम आप जैसा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में क्या करते थे, लेडजर को बैलेंस करना है। बैलेंस असेट का बैलेंस कितना रिमेन बचा हमें यहाँ पे वो देखना है। असेट का बैलेंस आपको बचा 18,000। ये 2,000 20,000 में से जो डिप्रिसिएशन वाला है वो माइनस कर लिए, तो अपने को बैलेंसिंग बचा 18,000। तो फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कंप्लीटेड। सेकेंड ईयर फॉर सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन व्हाट वी नीड टू डू? नेक्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम जो आपने कैरी डाउन किया था, व्हाट वी हैव कैरी डाउन दैट इज ओनली द ब्रॉट डाउन अमाउंट, दैट इज 18,000। 18,000 हम फिर क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ पे हमारे अमाउंट कॉलम के लिए 18,000 आ गया। फिर ये ईयर का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। ईयर क्या है अपने को लिखना है यहाँ पे 31st मार्च 2013। ये ईयर आपको रहेगा कब से कब तक? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक का। यहाँ पे फिर लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट लेंगे। डिप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे? फिर हम डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया था, 1 ईयर के लिए डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं किया था। डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कितना है? 20,000 है ना हमारा अमाउंट। 20,000 के ऊपर हम क्या करेंगे?
कितना परसेंटेज, 20%, यहाँ पे परसेंटेज मेंशन है आपको 20%, 20/100, 0 0 0 0 कैंसिल, तो हमें कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 4000 हमारा डिप्रिसिएशन होगा। वहाँ पे हमने 2 2 को कैंसिल किया था, 6/12 यानी हाफ किया था, तो यहाँ पे हमको 20% है, 10% होता तो 2000, 20% है इसलिए हम इसको लिखेंगे 4000, 2 2 ज़ा 4 और रिमेनिंग 4 के, तो डिप्रिसिएशन कितना था हमारा 4000, 4000 यहाँ पे लिखेंगे, 4000 हमारा ये ईयर का डिप्रिसिएशन आ गया, राइट। सेम फिर बैलेंसिंग करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके, लाइन ड्रॉ करेंगे, दो लाइन बैलेंसिंग, इधर भी हमारा बैलेंसिंग होगा, लेडजर को, सेम लेडजर को अमाउंट डालेंगे, राइट। नेक्स्ट बैलेंसिंग फिगर कितना है, सेम डेटा, सेम डेट होगी, यहाँ पे डेट का कोई चेंजेस नहीं होगा आपको, सेम डेट्स, ओके। यहाँ पे आपको लिखना है बाई बैलेंस, ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस, राइट, ब्रॉट डाउन लिखेंगे आप, सॉरी कैरी डाउन लिखेंगे, C/D कैरी डाउन, ओके। कितना बैलेंस बचा अपने को अभी, आफ्टर माइनस दिस 4000 के माइनस करने के बाद हाउ मच बैलेंस वी हैव 14,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 14,000 बैलेंस रिमेन इन द एसेट, बोथ द साइड सेम, 18,000 एंड 18,000, टोटल दोनों साइड्स होगा 18,000। ये 14,000 कैसा आया हमें, ये 18,000 में से हमने 4,000 को माइनस किया यानी करंट ईयर डिप्रिसिएशन को, तो हमें बैलेंसिंग फिगर आया 14,000, ये आपका टोटल हो गया, इट्स आवर टोटल दैट इज 18,000। नाउ वी कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन फॉर द लास्ट ईयर, राइट, दैट इज ऑन 1/4/13 के लिए डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले बैलेंस ले लेना है, पहले क्या करेंगे, बैलेंस लेंगे, टू बैलेंस, यहाँ पे ब्रॉट डाउन B/D, आपको ब्रॉट डाउन वाला अमाउंट आ गया, कितना है, ऑलरेडी अपने पास ब्रॉट डाउन का अमाउंट अवेलेबल है, दैट इज़ 14,000, ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना है, हाउ मच ब्रॉट डाउन अमाउंट वी हैव, 14,000 ब्रॉट डाउन अमाउंट वी हैव, सी, फिर अगेन ये ईयर का डिप्रिसिएशन सेम 31 मार्च को होगा, 31 मार्च 2014, देखो यहाँ तक का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था ना हमें, क्वेश्चन में दिया था कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च 2014, सो हम 31 मार्च 2014 तक का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, सो हमें डिप्रिसिएशन को एवरी ईयर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एवरी ईयर हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में हमने डिप्रिसिएशन इसलिए कैलकुलेट किया था क्योंकि फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन ओनली फॉर 6 मंथ्स था और सेकंड ईयर में डिप्रिसिएशन फुल ईयर का, थर्ड ईयर में भी हमें डिप्रिसिएशन फुल ईयर है, सो नीड नॉट टू कैलकुलेट, डायरेक्टली वी कैन कीप इट एज 4,000, क्योंकि 20,000 का फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो डिप्रिसिएशन यानी 20,000 कॉस्ट ऑफ एन एसेट पे ही निकालेंगे, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डिप्रिसिएशन निकालेंगे, यानी अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन नेवर चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो व्हाई इट इज चेंज इन फर्स्ट ईयर, व्हाई, बिकॉज इन द फर्स्ट ईयर द एसेट परचेज इन द मिडिल ऑफ द ईयर, एसेट को मिडिल ऑफ द ईयर में परचेज किया गया था, इसलिए फर्स्ट ईयर में हमें 2,000 डिप्रिसिएशन आया। एक बार फुल ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हमें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में एवरी ईयर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डिप्रिसिएशन 4,000 ही होगा। फिर हमारा रहेगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर देखेंगे तो टोटल कितना होगा हमारा, टोटल बोथ द साइड्स हमारा टोटल होगा 14,000 ही, बोथ द साइड्स टोटल कितना होगा हमारा 14,000 ही हमारा टोटल होगा। यहाँ पे भी हमारा टोटल होगा 14,000 ही, 14,000 ही हमारा टोटल होगा, ठीक है ना।
राइट, अब बैलेंसिंग फिगर लेना है हमें या सेम डेट पे 31 मार्च, यार आप यू कैन कीप इट एज अ डू सिंबल, आप डू का सिंबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम डिप्रिसिएशन होगा, हमें सेम बैलेंसिंग फिगर रहेगा हमारे पास बाई बैलेंस कैरिड डाउन सी बाई डी। ओके, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है बैलेंस हमारे पास? 14,000 माइनस दिस 4,000, 10,000। बैलेंसिंग फिगर है हमारा 10,000। सो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर ही हमारा आंसर होगा। अभी आप क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक में यू कैन सी द आंसर इज 10,000। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप आगे आके यहाँ पे 1/4/2014 लिख के टू बैलेंस ब्रॉडबैंड 10,000 लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। सो दिस इज़ अवर प्रॉब्लम नंबर 2। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can message me on my WhatsApp number. Okay, right, thank you very much. So see, I have explained you total the second problem, first and second problem completed. Inshallah in our next class we'll go for our third problem. Right, thank you very much.